Hi, most welcome by NutriClinic Society, NCS. Let us start informative video. This webinar is conducted by NutriClinic Society. This is not-profit organization for the welfare of mankind, and its goal is to have well-nourished nation that effectively contributes to the national development and prosperity. Today our topic is the gut health, and our guest speaker is dietitian Maham Tahir. For detailed discussion, I welcome her to aware us about our gut health. Assalamualaikum. My name is Maham Tahir and I hope all of you are really well. So today we are going to learn about our gut health. और हमने वैसे normally हम अपनी gut health को इतना importance नहीं देते जितनी हमें वैसे देनी चाहिए. So everyone, we are going to learn about gastroenterology. What exactly is our gut and how does it work? You know, our gut is connected directly to our mind as well, and the role of gut flora. Gut flora is actually of all of the microbiome. In microbiome, all of the bacteria, fungi, and viruses exist. You know, we are about 90% bacteria. Our gut have so many bacteria. We are going to learn about these bacteria as well, and we are going to learn about 7 signs of an unhealthy gut, their signs, and the roles of probiotics and prebiotics, and what should be eaten taking care of our gut. Namra, can you please next slide? Okay, so first if we really want to understand our gut, we really need to understand our digestion. How does food digest? Okay, so when we eat something, हम केक को भी ले सकते हैं. अगर हम केक खा रहे हैं तो सबसे पहले हमारे मुंह में उसकी डाइजेशन स्टार्ट होती है. हमारे जो मुंह में एंजाइम होता है लिंगुअल लाइपेज, वो ब्रेक डाउन स्टार्ट करता है. ठीक है, हम उसको च्यू करते हैं, उस फूड को मिक्स करते हैं और वो केमिकल ब्रेक डाउन हो जाता है, उसके कार्बोहाइड्रेट्स, और वो फूड जो है वो हमारे फेरिंग्स में चला जाता है. Pharynx से वो food आगे that food actually propels from oral cavity to the esophagus that lubricates food and passageways as well. So इस तरह से हमारा जो food है वो आगे lubricate होके esophagus में चला जाता है, और फिर esophagus में वो mix होता है gastric juices से to form a chyme. जो आपने केक खाया था वो पहले bolus बना और फिर वो pharynx से esophagus से आके फिर आगे chyme बन गया. That it actually begins breakdown of protein. फिर stomach में वो release हुए वही chyme जो जब stomach में आएगा तो वो absorb होगा. उसमें जो जितने भी fat soluble substances थे, alcohol, aspirin वगैरह, ये सब कुछ absorb होते हैं. फिर antimicrobial functions जो होते हैं वो start हो जाते हैं. इसी तरह से intrinsic factor जैसे vitamin B12 जो होता है उसकी absorption हमारे small intestine में start होती है, और ये जो chyme होता है ये digestive juices के साथ mix हो जाता है. यही chyme जब आगे हमारे small intestine में जाता है तो इसकी digestion और absorption start हो जाती है, और it absorbs breakdown products of carbohydrate, protein, lipids and nucleic acids along with vitamins, minerals and water. और इसी तरह से physical digestion start हो जाती है जो हमारी पूरी body में जाती है. It produces bile salts which emulsify liquids aiding their digestion and absorption. और इसी तरह से next वो pancreas में आता है. In pancreas it produces digestive enzymes and bicarbonate pancreatic juices जो help करते हैं acidic chyme और provide करते हैं optimal environment for enzymatic activity. इसी तरह जब ये चीज़ लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है तो ये फर्दर ब्रेक डाउन हो जाती है और जो मिक्स हो जाती है, एब्सॉर्ब हो जाती है वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स के साथ. और जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन्स में बैक्टीरिया होते हैं ये एक तरह से उनके लिए फूड होता है, और इसी तरह से बाद में ये रेक्टम से एलिमिनेट हो जाता है. सो काइंडली नेक्स्ट स्लाइड. Okay, so you know that our gut is also known as the second brain as well, because हमारे जो gut में neurotransmitters हैं वो directly connected हैं हमारे brain से भी.
और ये कोई हमारे 100 मिलियन न्यूरॉन्स हैं. इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग विद न्यूरॉन्स एंड देयर आर सो मेनी न्यूरॉन्स दैट आर ट्रांसमिटेड. और जितने भी आपको पता है आपको क्रेविंग होती है वो इसलिए होती है क्योंकि आपके जो गट में माइक्रोब्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं आपकी ब्रेन से, जो आपको जो आपके ब्रेन को सिग्नल्स देते हैं. Although it actually manufacture 90 to 95% of our supply find in the digestive tract, or it is vital for communication as well. आपको पता है कि serotonin हमारी बॉडी में जब सिक्रीट होता है ये हमें एक तरह से हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है. डोपामाइन और एपिनेफ्रिन ये जो हमारे माइक्रोबियल सिस्टम में बैक्टीरियाज होते हैं ये हमें एक तरह से क्रेविंग के लिए एक तरह से भेजते हैं, सिग्नल्स भेजते हैं हमारे ब्रेन को. और जब हम उनकी क्रेविंग फुलफिल कर देते हैं तो ये हमें एक तरह से रिवॉर्ड देते हैं सेरोटोनिन और डोपामाइन के थ्रू, जिसकी वजह से हम अच्छा फील करते हैं. और अगर हम इन क्रेविंग्स को नहीं फुलफिल करते तो ये जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं बनते और हम इस तरह से स्ट्रेस में चले जाते हैं. So you know that it also influences your stress और tolerance level. जैसे social support ना हो, your sense of control ना हो, a strong network of supportive friends and family members can be an enormous buffer against life stressors. और your sense of control, अगर आपको लग रहा है कि आपके हाथ से सब चीजें निकल रही हैं तब भी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है. Your attitude and outlook. Optimistic people are often more stress hardly and they tend to embrace challenges and have a strong sense of humor and accept that changes is a part of life. So अगर आप में वो attitude नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा stress feel करते हैं. और अगर आप stress feel करते हैं तो वो हमारी body में already neurotransmitters बनते रहते हैं जो हमारे microbes को affect करते हैं. और हम कहते हैं ना हमारी gut feeling ये है, तो वो हमारी gut feeling को change कर देते हैं. And your ability to deal with your emotions. You are extremely vulnerable to stress if you don't know how to calm and soothe yourself when you are feeling sad or angry or overwhelmed by a situation. These are skills that can be learned at any age. So your knowledge and preparation, the more you know about a stressful situation, including how long it will last and what to expect, the easier it is to cope. For example, if you go into a surgery with a realistic picture of what to expect post-op, a painful recovery will be traumatic than if you are expecting to bounce back immediately. So इस तरह की जो हमारी एंजाइटी होती है, एकदम से जो हमें पैनिक अटैक्स होते हैं, वो भी हमारी ब्रेन और गट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं. How stress impact your gut? Kindly next slide. Okay. So how it actually impacts in so many ways. It decreases nutrient absorption, it decreases oxygenation to your gut, and 4 times less blood flow to your digestive system. Decrease metabolism, decrease enzymatic output. Obviously जब आपके जो गट में माइक्रोबायोम जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, आप जब उन्हें अच्छा फूड नहीं प्रोवाइड करोगे, प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स, तो वो एंजाइम्स नहीं बनाएंगे. एंजाइम्स आप जो फूड खाओगे उसे ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, उन्हें बिल्कुल भी फर्मेंट नहीं करेंगे. Alteration in the gastrointestinal motility, increase in visceral perception, changes in gastrointestinal secretion. Obviously जितनी भी आपके स्टमक में एसिड्स हैं, जब तक आपके बैक्टीरिया एक हार्मनी में नहीं रहेंगे, एक फ्लो में नहीं रहेंगे, वो भी जो एसिड हैं वो सिक्रेट नहीं करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड. The role of gut flora. The gut flora is a complex ecological system formed by indigenous prokaryotic and eukaryotic microbial cells in the digestive tract. So in this slide, you will know that we have so many bacteria in our body and how it affects our health. So you know that our microbiota has many functions, including
including defending against harmful microorganisms and digesting dietary fiber that humans are unable to digest. Dietary fiber वो भी जो हम fruits खाते हैं और उसका जो fiber हम digest नहीं कर पाते, तो वो जो fiber होता है वो हमारे जो gut में bacteria होते हैं, असल में वो food उनके लिए होता है. Microbiota also is the absorption of some essential vitamins and can even affect your mental health. You know that in microbiota, many of the bacteria produces vitamin K and vitamin B in your body. So that's why they regulate these vitamins in your body. Early research suggests that some of the earliest changes that lead to Parkinson's disease actually begin with the gut microbiota. The recent discovery only highlights just how much we are yet to discover about the microorganisms that occupy our gut and the connection to our brain. आपको अगर पता हो कि एक रिसर्च निकली थी कि उन्होंने साइकोलॉजिकल न्यूट्रिशन ट्राई की थी कुछ बहुत से पेशेंट्स से जो मेंटल डिजीजेस से गुजर रहे थे, उन्होंने उनको मेडिटेरेनियन डाइट के थ्रू ट्रीट करने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने उनका देखा कि वो उनका जो गट फ्लोरा है, जितने भी उनके बैक्टीरियाज हैं उनकी बॉडी में, वो बहुत ज़्यादा अनइवन से हैं. So they tried to give them Mediterranean diet to help them, and they actually recovered from that diet. Ma'am, gut microbiota and microbiome are same things? Yes, it is same. Okay, so the gut, the amount of bacteria in the human body, there are total 100 trillion bacteria in and on your body. So mostly 90% in large intestine. Bacterial cells outnumber human cells 10 to 1. So you are mostly like 90% bacteria. Species, there are like 10,000 species of bacteria in your body and 1,000 species of bacteria in your gut. And अगर इनका टोटल वेट किया जाए तो ये 2 to 6 पाउंड्स है आपके बॉडी में. इनका सिर्फ बैक्टीरिया का वेट 2 to 6 पाउंड्स है. सो हमने वैसे सोचा होगा, हम पहले कभी भी बैक्टीरिया को इतना सीरियस नहीं लेते थे कि सिर्फ बैक्टीरिया से इलनेस होती है, लेकिन बैक्टीरिया इज एक्चुअली रियली गुड फॉर हेल्थ एज वेल. नेक्स्ट स्लाइड. Good bacteria and bad bacteria. As we know that some of the good bacteria are like Bifidobacteria, Lactobacilli, and Escherichia coli. Please pardon my pronunciation. My pronunciation is not really good. Okay, so Bifidobacteria is actually help to regulate level of other bacteria in the gut. ओके, सो ये इस तरह से मैनेज करती है दूसरे बैक्टीरियाज को भी, और ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी मैनेज करती है, और जो पैथोजेंस होते हैं और ट्यूमर फॉर्मेशन होती है ना हमारी बॉडी में, उससे प्रिवेंट करती है हम, और विटामिन्स को भी प्रोड्यूस करती है. सो लैक्टोबैसिलाई. मैम, बाइफिडोबैक्टीरिया का रोल होता है कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन में? Bifidobacteria का नहीं होता, लैक्टोबैसिलाई का होता है. लैक्टोबैसिलाई जो होती है वो हम जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाते हैं ना अक्सर, उससे हमें बचाती है. उड़ाई हुई है. There are many beneficial varieties of lactobacilli. It produces vitamins and minerals, and lactobacilli also improves your immunity and protect against carcinogens as well. मेरे ख्याल से किसी का माइक खुला रह गया तो उसको बंद कर ले. So maybe all of you know that what is meant by carcinogens, that it also protects against carcinogens. Carcinogens are the cancer cells in our body. So E. coli, there are several types of E. coli, and each of these bacteria have different species in our body. E. coli has also have the inhabit of the human gut, and they are involved in the production of vitamin K, which is essential for blood clotting. And it also helps to keep bacteria in check, and some of the species of E. coli also lead to illness.
some of the bad bacteria like Campylobacter, like these bacteria are really bad for human health, and infection usually occurs throughout the ingestion and contaminated food. So Enterococcus और Faecalysis are that bacteria जब हमारी पोस्ट सर्जरी हो जाती है ना, उसके बाद जो हमें इन्फेक्शन होती है वो इस बैक्टीरिया की वजह से होती है. क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया जो होता है वो मोस्टली हमें एंटीबायोटिक्स की वजह से होता है. जब हम एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा खाते हैं तो उस वजह से ये बैक्टीरिया हमें इलनेस के थ्रू ले जाता है. फंक्शंस ऑफ द गट माइक्रोबायोम. Kindly next slide. Okay. Functions of the gut microbiome, it manages immune function. It prevents growth of harmful microorganisms. Harmful microorganisms कौन से हो सकते हैं? बैड बैक्टीरियाज. और बैड बैक्टीरियाज वो भी होते हैं जब अक्सर आपको पता है हम बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं ना, आपको पता है हम जो खाते हैं हम वही होते हैं. यू आर व्हाट यू ईट. सो अगर आप जंक फूड खा रहे हो तो आपकी बॉडी में वही बैक्टीरिया बने. अगर आप हेल्दी फूड खा रहे हो तो आपकी बॉडी में वही बैक्टीरिया बनेगा. सो हेल्दी गट माइक्रोबायोम also prevents the growth of harmful microorganisms, and it actually fermentation of indigestible fiber. इनडाइजेस्टिबल फाइबर को ये ब्रेक डाउन कर देता है आपकी बॉडी में, और जो इनडाइजेस्टिबल फाइबर होता है वो हमारे गट माइक्रोबायोम की बैक्टीरियाज खाते हैं. इट ऑल्सो प्रोड्यूस डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन K2, विटामिन B, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स. जी मैम मैं पूछ रही थी इनडाइजेस्टिबल फाइबर जो आपने कहा ये इनसोल्यूबल फाइबर की फॉर्म में लाइक हेमिसेलुलोज हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता ना, वो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब वो डाइजेस्ट कर लेते हैं और ये एक तरह से उनके लिए फूड होता है. ठीक है. और दैट्स व्हाई फाइबर इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट रियली हेल्प्स इन पासिंग द स्टूल. आपको पता है कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स जब हमारी बॉडी में क्रिएट होते हैं, ये तब क्रिएट होते हैं जब हेल्दी लिपिड ऑयल्स, ओलिगोसैकेराइड्स. जी. तो आपको पता है हम जो ऑयल लेते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह का ऑयल ले रहे हैं. अगर आप लिपिड्स ले रहे हैं, एनिमल लिपिड्स ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी में आर्किडोनिक एसिड्स बनेंगे, और आर्किडोनिक एसिड्स जो होते हैं वो आगे जाके न्यूरोट्रांसमीटर जब आपकी बॉडी में बन जाते हैं तो वो पेन सेंसेशन में आ जाते हैं, वो पेन सेंसेशन क्रिएट करते हैं आपकी बॉडी में. लेकिन वही अगर आप लिंसीड ऑयल और ऑलिव ऑयल और इस तरह के जो वेजिटेबल सोर्सेज ऑयल हैं, अगर आप वो लेते हैं तो उससे आपकी बॉडी में कौन सा बनता था, लिनोफिलिक आई थिंक, वो वाला वो चेन बनती है जिसकी वजह से आपको पॉलीफिनॉल्स मिलते हैं. आपकी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो आपकी एंटी इंफ्लेमेटरी एज अ काम करते हैं आपकी बॉडी में. सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट व्हाट टाइप ऑफ ऑयल you are consuming. So next slide, it is development of the microbiome. It actually begins at birth. It is very most interesting part. आपको पता है कि मोस्टली बर्थ में जो बच्चे नेचुरल बर्थ में होते हैं वो ज़्यादा उनको एक्सपोजर मिलता है इंटेस्टाइनल माइक्रोब्स का, और जो बच्चे मोस्टली सी सेक्शन में होते हैं उन्हें मिनिमल बैक्टीरियल एक्सपोजर मिलता है. और जो बच्चे सी सेक्शंस में होते हैं ना से होते हैं उन्हें ज़्यादा एलर्जीज होती हैं, उन्हें ज़्यादा इम्यून सिस्टम का मसला होता है, उनकी इम्यून सिस्टम मोस्टली वीक होते हैं. और इसी तरह अगर आप घर में बहुत ज़्यादा सफाई रख रहे हैं, हर वक्त अपने दरवाजे बंद रखते हैं, और जैसे आजकल कोरोना का बहुत मसला है, हम हर वक्त सैनिटाइजर लगा के रखते हैं, तो हमारे बिल्कुल भी पास बैक्टीरिया नहीं आते. तो हमें थोड़ा सा अपने आप को एक्सपोजर देना चाहिए, और जैसे अक्सर बच्चों को मिट्टी में खेलने से मना किया जाता है, तो थोड़ा बहुत उन्हें खेलने देना चाहिए ताकि उन्हें गुड बैक्टीरिया का एक्सपोजर मिले. और जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि सी सेक्शन में मोस्टली जो बच्चे होते हैं उन्हें एलर्जीज वगैरह हो जाती हैं. जैसे मुझे है लैक्टोस इंटॉलरेंस है, और वो अभी तक वैसे ही है. ब्रेस्ट फीडिंग की में भी डेवलपमेंट होती है माइक्रोबायोम की.
वो इस तरह से होती है कि जो मदर का मिल्क होता है उसमें शुगर्स होते हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं बेबी में, और इसी तरह से जो मदर में माइक्रोब्स होते हैं वो भी ट्रांसफर हो जाते हैं बेबी में. सो प्रीबायोटिक्स आर द ओलिगोसैकेराइड्स एंड दे आर फूड फॉर गट बैक्टीरिया, एंड probiotics are the beneficial bacteria. They live bacteria that populates gut. We will learn more about probiotics and prebiotics in the next slides. So 7 signs of an unhealthy gut. Stomach discomfort. Just a minute. You know, in modern life, हम इतने स्ट्रेस लेवल में रहते हैं, हम बिल्कुल भी अपनी नींद पूरी नहीं करते. आई थिंक जिस एज में हम हैं उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल पोजीशन में रहते हैं, ज़्यादा नींद सोते भी नहीं है, और हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड और हाई शुगर फूड खाते हैं. So taking and we also take antibiotics which can damage our gut microbiome. आपको पता है कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो हमारी गट में जाके जो हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं उनको भी खत्म कर देते हैं. वो बैड बैक्टीरियाज को तो खत्म करते ही हैं, लेकिन वो हेल्दी बैक्टीरियाज को भी खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन भी स्टार्ट हो जाती है हमारे स्टमक में, और इस वजह से हम लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं और हमें फटीग बहुत ज़्यादा होती है, हम नोजियाटिक ज़्यादा फील करते हैं. और इस वजह से this may turn affect all aspects of health like our brain or heart, immune system, skin, weight, hormone levels, or ability to absorb nutrients, and even the development of cancer. In stomach discomfort, this stomach discomfort में आ सकता है कि हमें गैस हो जाती है, bloating, diarrhea, constipation, abdominal pain. These can lead to IBS, irritable bowel syndrome, और ये बहुत common condition है that affect our large intestine, और जो हमारी imbalance कर देती है gut bacteria को बिल्कुल ही, और fatigue आ जाती है. fatigue हम जब बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड खा लेते हैं, हम अक्सर लेजी फील करते हैं, हम हर वक्त सोते भी अक्सर रहते हैं, तो ये फटीग की एक तरह से which consist of the bacteria, microorganism, fungi and viruses that present in the gastrointestinal tract. और आपको पता है कि रिसर्चर्स ने देखा है कि मोस्टली जो हाफ ऑफ द पीपल जो फटीग से सफ़र करते हैं उन्हें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी होता है. फूड क्रेविंग. Eating too much sugar can lead to an abundance of bad bacteria in the gut. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसा हम फूड खाएंगे ऑब्वियसली वैसी हमारी क्रेविंग भी होगी और वैसी हमारी एनर्जी लेवल्स होंगे. तो फूड क्रेविंग्स भी हमें बहुत ज़्यादा होंगी अगर हमारा अनहेल्दी गट है. Unintentional weight changes. That we have chubby bacteria as well that produces energy from the food we eat. और वो कभी कभी बहुत ज़्यादा एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं जो हम फूड खाते हैं. अब सपोज आप अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी बहुत ज़्यादा हाई फैट फूड खा रहे हैं जो प्रोसेस्ड फूड है, तो वो उसमें से ज़्यादा एनर्जी प्रोसेस करेंगे और हमें हमारा जो वेट है वो ज़्यादा जल्दी चेंज हो जाएगा. स्किन इरिटेशन. Mostly unhealthy gut and skin problems such as acne and psoriasis and eczema. These are related to skin irritation. और आपको पता है कि probiotics and prebiotics. Is there any question? Okay, so prebiotics and probiotics may help balance the gut and thus prevent or treat these inflammatory skin issues. आपको पता है फिर allergies आ जाती हैं. allergies में lactose intolerance है, skin irritation है और food allergies है. Autoimmune conditions that stated a particular gut bacteria जैसे bacteroides, pharyngeals that produces a protein that may trigger the onset of autoimmune conditions जैसे arthritis होती है, ulcer होता है और multiple sclerosis होती है. Mood issues. हमारे जब gut and the brain both influence of the gut may also extend to your mood. आपका जो गट जब डिस्टर्ब हो जाता है
और ये एक तरह से इन्फ्लेमेशन कर देता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जिसकी वजह से हमें एंजाइटी होती है, हमें डिप्रेशन होता है, और इसमें हमें प्रोबायोटिक्स बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है इन दीज कंडीशंस. Migraine is also related to mood issues. Role of probiotic and prebiotic. So, just a minute. Probiotics are those bacteria that live, those bacteria that found in foods or supplements. They can provide numerous health benefits, and prebiotics, these substances come from types of carbs, mostly fiber, that humans can't digest. The beneficial bacteria in your gut can eat this fiber. So, probiotic bacteria family. The idea that bacteria can beneficial can be tough to understand. हमने कभी भी नहीं सोचा था कि बैक्टीरिया इतना भी हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, और आपको पता है कि बैक्टीरिया फिर मल्टीप्लाई होके बनता रहता है. We take antibiotics to kill harmful bacterial infection and use antibacterial soaps and lotions more than ever. तो इस तरह से जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, जो गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं, वो खत्म होते जाते हैं. Probiotics are live microorganisms that may be able to help prevent and treat some illness. जैसे लैक्टोबैसिलियस होती है, वो हमारी आपको पता है उसकी टोटल 50 स्पीशीज हैं. They are naturally found in the digestive, urinary, and genital systems. Found foods that are fermented like like yogurt and dietary supplements also contain these bacteria. And they are used for treating and preventing a wide variety of diseases and conditions. बी फाइटोबैक्टीरिया जो हैं उनकी 30 स्पीशीज होती हैं, एंड दे मेक अप मोस्ट ऑफ द हेल्दी बैक्टीरिया इन द colon, and they appear in the intestinal tract within days of birth, especially in the breastfed infants, and are thought to be the best marker of intestinal health. So B phytobacteria is really important. आपको पता है बी फाइटो बैक्टीरिया जो होता है वो हमारे जो ब्लड लिपिड्स होते हैं उसको भी इम्प्रूव करता है, और ग्लूकोज टॉलरेंस को भी. बी फाइटो बैक्टीरिया हमारे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को भी ठीक करता है, जैसे हमें पेन होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, डिस्टेंशन होता है, ब्लोटिंग होती है, और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है. लैक्टोकोकस जो वही जो हमें लैक्टोज इंटॉलरेंस से प्रिवेंट करते हैं. इसमें असल में लार्ज क्वांटिटी में लैक्टेस एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं जो हमें लैक्टोज इंटॉलरेंस से प्रिवेंट करते हैं. सो हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ probiotics. Probiotics may seem to new to the food and supplement industry. आपको पता है अगर आप प्रोबायोटिक या प्रीबायोटिक अगर सप्लीमेंट्स में ले रहे हैं तो वो इतना अफेक्ट नहीं करेगा जितना वो अफेक्ट फूड के थ्रू करेगा. सो आपको पता है प्रोबायोटिक के बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे वो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करते हैं, हमारी स्किन को हेल्दी करते हैं, मेंटल हेल्थ को रेगुलेट करते हैं, मैनेज करते हैं, स्ट्रेंथनिंग द इम्यून सिस्टम. अगर आपने वैसे मैं आपसे बात पूछना चाहती हूँ कि आपने फील वैसे किया होगा कि आपने अगर कभी घर में दही जमाया है और अगर आप उस दही को ठंडा करके और उसका एक चम्मच लो मलाई के साथ, तो आपको अच्छा फील होता है, आप अंदर तक ठंडक फील करते हैं ना. यस मैम. वो इसलिए फील करते हो क्योंकि उसमें फर्मेंटेड बैक्टीरिया होता है, और योगर्ट इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक्स. इसी तरह ये हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ में बहुत काम आता है, हमारे वेट लॉस में बहुत काम आता है, और हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में बहुत काम आता है. और मूविंग ऑन टू प्रोबायोटिक सोर्सेस. Kindly next slide. Okay. There are many sources of probiotics like miso soup. Miso soup is actually a dish of Japanese, and they used soybeans fermented paste to make this soup. और ये बहुत ज़्यादा हमारे इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा होता है, और हमें ये प्रोबायोटिक बैक्टीरिया प्रोवाइड करता है. चॉकलेट्स इन डार्क चॉकलेट्स मोस्टली, दे डिडंट मेंशन बट द डार्क चॉकलेट्स मोस्टली हेल्प इन
regulating the microbiota. Cottage cheese and mostly the soft cheeses are really helpful for us, like Gouda cheese, Gouda. Pickles and sauerkraut. Sauerkraut is actually like cabbage type of vegetable that is really good for your health. And pickles and kombucha. Kombucha is actually a fermented drink that is made for your stomach, जो आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है एंटीबायोटिक्स की वजह से, उसके लिए कॉम्बुचा बहुत अच्छी है. और कैफीर भी है. कैफीर जो है वो एक मिल्क फर्मेंटेड ड्रिंक है जो आपके स्टमक के एक तरह से रिलीफ देती है. जो एंटीबायोटिक्स हम अक्सर बहुत ज्यादा खाते हैं वो हमारे बैक्टीरियाज को खत्म कर देती है. आई होप कि आपको समझ आया होगा इधर तक. Prebiotics. Okay, so prebiotics are selectively fermented ingredients which allow specific changes both in the composition or the activity of gastrointestinal microflora that confers benefits upon host well-being and health. So mostly prebiotics, we can get prebiotics from the Mediterranean diet, from fruits, vegetables, and meat. A prebiotic is actually a non-digestible carbohydrate that acts as food for the probiotic and bacteria in your gut. The definition of the effect of prebiotic is that selective stimulation of growth of the limited number of microbial genus. और इसके बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं आपकी बॉडी के लिए. और ये हमारी बॉडी में जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इलनेस होती है, जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उससे ये बहुत ज़्यादा हमें प्रिवेंट करते हैं. आपको पता है एक रिसर्च थी जिसमें एथलेटिक्स जो है ना, उनकी माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने मोस्टली उनकी हेल्थ इस तरह से ठीक की थी कि उन्होंने उनकी जो बैक्टीरियाज थे उन्हें मोस्टली फर्मेंटेड ड्रिंक्स दी थी. उन्हें जितना भी उन्होंने खाना खिलाया था वो इतना हेल्दी और न्यूट्रिशियस था कि वो उनके जो बैक्टीरियाज थे उन्होंने अच्छे से एनर्जी प्रोड्यूस की थी. दैट्स व्हाई दैट एथलेटिक्स आर मोर एनर्जाइज्ड देन अस. सो द नेक्स्ट स्लाइड ऑफ प्रीबायोटिक्स. अच्छा, प्रीबायोटिक्स के लिए अगर एक बैक्टीरिया ने एलिजिबल होना होता है तो उसके लिए ये होता है कि वो स्टमक की जो पीएच वैल्यू है ना उससे मैच करता हो, or unable to be broken down in the small intestine, transferable to the colon as a fermentable substrate, मतलब वो break down हो सके आराम से colon में, or able to stimulate the growth of a selective group of beneficial colonic bacteria. You know, most of the prebiotics are oligosaccharides and they are resistant to the human digestive enzymes, and that were prebiotics हमें कहाँ उसकी source बना mustards, onion, sugar beet, sugar cane juice, tomato, overall health, wheat and जैसे garlic and onion है. Garlic and onion may have some anti-cancer and immune system enhancing properties based on various studies which are closely tied to some of the primary functions of the gut. Some of these benefits are anecdotal, although some research have. Kimchi is like meat alternative. ओके, सो जैसे टोफू होता है वैसे ही किमची भी होता है. वो भी सोयाबीन से बनाया जाता है. उसका टेस्ट जो होता है वो बिल्कुल थोड़ा सा मीट जैसा भी होता है. और जैसे सौरक्राट होता है वो तो आपने बताया कि कैबेज जैसा होता है. योगर्ट, टेम्पे भी मीट अल्टरनेटिव है. माइसो एंड कैफिर जो फर्मेंटेड मिल्क है. दीज आर रियली ग्रेट डाइटरी सोर्सेज ऑफ प्रोबायोटिक्स. व्हाइल द क्वालिटी ऑफ दीज फूड्स मे वेरी, देयर बेनिफिट्स ऑन द gut microbiome. Or collagen boosting food, like collagen rich boosting foods are bone growth, salmon. They are beneficial to overall health and gut health especially. And you know, many of these benefits are anecdotal conclusions, and further research could be done.
You could also try to boost your body's own collagen production through food. Try adding a variety of food like mushrooms, good dairy and certain meats. तो उसके अलावा भी बहुत से फूड हैं जो आपकी बॉडी में माइक्रोबायोम को और जो बैक्टीरियाज हैं उन्हें रेगुलेट करते हैं. थैंक यू. आई होप कि आपको समझ आया होगा आज का जो हमारा था सेशन गट पे. यस मैम. तो फिर हम इसको ख़त्म करते हैं यहाँ पे. ओके मैम, थैंक यू सो मच. यू वेलकम. अल्लाह हाफिज़ मैम. अल्लाह हाफिज़.